Hello students, welcome to the Tantray physics classes. Today I am giving you one more lecture on projectile motion, a few more examples, and today will be the last lecture on projectile motion. And I have already discussed some important points, but now let me go to some examples and some more concepts. Number one, what's the relationship between maximum height and maximum horizontal range? What is the relation between H and R? There are so many problems which are asked on this concept. So again, I will make a diagram. It is X, it is Y, and here you launch a projectile with velocity u at an angle theta, and this is the projectile motion, and here it is H max and here it is range. So here for this given theta, I want to find relation between H max and R, and the relation will be very simple. I will derive it in a moment. And the relation, let me write down the relation first. What is the relation? It is H max is equal to R by 4 tan theta. This is the relation. But let me prove it in a moment. So, what is H max? That we already know, that is u square sine square theta by 2g. That is already what you know, equation number first. This we have already derived. You must have a lot of practice with this, and possibly most of the students then remember it. And what is R? Range. That is u square sine 2 theta by g, equation number second. If I divide these two equations, what I am going to get? I will draw a line. This line is just the division. It is u square gets cancelled, g gets cancelled, and I will get H max by R is equal to what I get? H max by R, that is sine square theta by 2g, g will get cancelled, g divided by sine 2 theta, sine 2 theta, and this will be sine square theta by 2 times sine 2 theta, that is twice sine theta cos of theta. This sine 2 theta I will write here. One sine theta will get cancelled. What I am going to get? I am going to get H max by R is equal to how much? It is sine theta by cos theta, that is tan theta, by that is 2 and 2 is 4. So here now final equation, H max is equal to 1 by 4, okay, R here by 4 tan theta. That's it. This is a good relation between horizontal range and maximum height connected through theta. So if I make an example on it, so I will give you a moment where you just think about the problem and then you try to give me the answer. Okay, let me rub it off. But I will keep the figure there because I need it all the way down. Whichever example I pick up, I will need this diagram. Second, if a projectile is launched at 45 degrees, its range is 100. Find maximum height. Find maximum height. It is the problem that I framed on the very concept of the relationship. It should be very easy now for you. Here R range is equal to 100, theta is equal to 45, and you can directly use the formula H max is equal to R by 4 tan theta. What is H max? That is R is substituted as 100, divide by this 4, tan 45,
it is h max is equal to, it is 25 100 by 4 and 1045 is 1. This is the answer. So you don't need to go into details. कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड concept regarding this projectile motion. Third one, a projectile launched from certain height. उसमें हम देखेंगे क्या क्या जरूरत है, क्या क्या हम सीख सकते हैं. A projectile launched from certain height. ऐसे कुछ ये a projectile launched from certain height. Okay, one more point I will write it here. One more condition, that is, okay, horizontally. A projectile launched from certain height horizontally. How to analyze such a situation? इस सिचुएशन को कैसे हम एनालाइज करेंगे? मैं किसी हाइट पर हूं और मैंने वहां से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, प्रोजेक्ट किया, तो क्वेश्चन यह हो सकता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल डाउन टू द ग्राउंड. यह भी क्वेश्चन है कि आफ्टर a little bit of time, what is the velocity? How much far off it will go from the bottom of that height, bottom of that tower from which you are launching it? Velocity क्या होगा, किस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा, और जब ग्राउंड पर हिट करेगा तब क्या वेलोसिटी होगा. सो अगेन, व्हेन आई लॉन्च ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो यही देखना है कि इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, और जब ग्राउंड को हिट करेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, आगे कितना गया, तो वो सब चीजें देखिए आप अच्छी तरह से. ये है वो हाइट जहां से मैं इसको लॉन्च, हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया विद वेलोसिटी ओके यू, और ये जो कि ग्रेविटी की वजह से ऐसे फॉल होगा. तो ये h है, क्योंकि h हाइट से आप इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इट हैज गॉन सपोज x, इसको रेंज भी कहा जा सकता है. अच्छा, तो ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्या है ये भी निकालने की हम कोशिश करेंगे. चलो v समझो ये वेलोसिटी, और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल ऑन टू द ग्राउंड, या ग्राउंड पर भी जब ये हिट कर किया तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, ये भी y. इसको ऑरिजिन ही ले लो. तो मैं इस प्रोजेक्टाइल को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, एक्स और वाई में, बिकॉज मोशन तो सिर्फ एक्स प्लेन में है. तो ऐसे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि शायद वो आपके लिए इजी होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. ये मैं एक्स मोशन और वाई मोशन. एक्स मोशन में क्या क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस द एक्स मोशन, ये यू है ना, ठीक. तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज यू एक्स इनिशियल, इस पॉइंट पर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, initial velocity in the x direction. Everybody will agree with me, it is u. Can you tell me what is initial y velocity? ये component क्या है? What is uy? What is uy? When the particle is launched horizontally, it has all the velocity in the x direction. तो अगर इस direction में इसका velocity है, तो यह component zero हो गया, because all the velocity is in the forward direction, horizontal direction. Obviously ये कंपोनेंट जीरो हो गया, तो यू वाई इज जीरो. अच्छा, एज यू ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू, तो इसका मतलब ए एक्स जो है वो जीरो है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी ऑलवेज इन द अंडर ग्रेविटेशन, unless it is not an inclined plane where x and y are in different directions, they are inclined with respect to horizontal. उस सूरत में ये हमें चेंज करना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल जब तक
इंक्लाइंड प्लेन नहीं है जहां आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ये हमेशा यही रहेगा, ax is 0, ay is minus g, because acceleration is vertically downwards, तो obviously acceleration in x direction is 0, all the acceleration is in the y direction. तो यहां पर मैं लिखूंगा ax is equal to 0 and ay is equal to minus g. These are the two things. Anyway, तो मुझे आप बताइए what is okay, ux here, what is ux? Velocity in the horizontal direction. What is velocity in the y direction? अगर ये वेलोसिटी जो, तो एक्चुअल वेलोसिटी तो पाथ को टेंजेंशियली होता है, ठीक, तो ये थीटा थीटा नहीं अल्फा ही कहो, क्योंकि थीटा वी यूज मेनी टाइम्स फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, अल्फा. तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज vx? तो वही vx इज इक्वल टू दैट इज ux प्लस axt, दैट इज it is 0, ux is 0, that means it is ux and that is equal to u. तो मैंने ux जो वेलोसिटी द x डायरेक्शन है वो निकाला इजी, तो इसका मतलब ux is u. वैसे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं. इस डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? वो तो कांस्टेंट रहता है. अगर चेंज होगा तो वो वी वाई होगा, इस वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. एक्सेलरेशन का मतलब भी होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, इसलिए ये वाला जो वेलोसिटी है ये चेंज होगा ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट. ये वाला वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट इज वी वाई? वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी. सो इट इज इक्वल टू it is 0 minus gt, that is equal to minus gt. Minus means this is vertically down, that is gt. अगर एरो दिखाया फिर माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर एरो नहीं दिखाना है तो फिर माइनस लिखना पड़ेगा. तो दिस माइनस इंडिकेट्स ओनली नेगेटिव साइन, इंडिकेट दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अच्छा, ये हमने, अगर आपको पूरा वेलोसिटी चाहिए यहां पर, तो वो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, that is u square plus g square t square, because this is the resultant of these two components because of the vectors. Acha, now what is x? What is x? Okay, can you write the equation in the y direction? What is x? X should be written as uxt plus 1 by 2 ax t square. तो ये तो 0 है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट इज ux? ux इज u इंटू टी. खत्म, आपको ये भी मिला, ut है इसका आंसर. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन? हाउ टू राइट दिस इक्वेशन? इट इज sy, दैट इज uyt प्लस 1 by 2 ayt स्क्वायर. तो व्हाट इज sy डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर इन द y डायरेक्शन? अगर यहां से यहां तक आप जा रहे हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डायरेक्ट कनेक्टिंग देम डिस्प्लेसमेंट. उस डिस्प्लेसमेंट का ये y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है. आपको या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा. इसके लिए कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इट इज एक्चुअल पाथ, फॉरगेट अबाउट दैट. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स फ्रॉम हियर टू हियर. एक्चुअल डिस्टेंस, it has never been a question asked anywhere, although it can be found out. ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है. even at IIT levels questions are not asked for distance covered. They can ask distance covered in one dimensional motion or sometimes in circular motion. What is the distance covered? But in circular motion possibly uniform motion में speed constant रहता है. In a circular motion there also you can be asked to find what is distance. Okay, it is sy is minus h is equal to what is uyt? That is 0, because the initial y velocity is 0, right? And plus 1 by 2, it is minus gt square. So that means this negative and this negative cancels. H is equal to 1 by 2 gt square and t is equal to root of 2h by g. This is a very important equation. When you throw a body horizontally, it falls to height h in time t given by root of 2h by g. और सोचने वाली बात यह है, यहां पर 2h by g, t जो है 2h by g,
इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं आता है। इसका मतलब जब आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ये जो फॉल होता है इसमें टाइम लगता है, वो टाइम जो है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। वो अगर करेगा तो डिपेंड वो एच पर डिपेंड करता है, और जी तो एक्सेलरेशन है। सो दिस इज वर्थ रिमेंबरिंग दैट दिस टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, दैट इज ऑल, वी हैव फाउंड एवरीथिंग। अब अगर आपको ये x निकालना है तो u ऐसे ही, और t को सबस्टिट्यूट करो, रूट ऑफ 2h by g, root of 2h by g. This is an analysis of the situation when a particle is projected horizontally from a top or from some building. तो ये आप याद करो और अच्छी तरह से देख लो, तो it can cover every problem wherever the object is launched horizontally from a certain height. These are the equations that can be used there. Okay, now the third point, fourth point. Okay, let me make a problem here. चलो यहां पर मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, एक प्रॉब्लम बनाता हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप लॉन्च करते हैं विद सम वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज, लेट मी सपोज 15 meters per second, and this is a height 490 meters. It falls onto the ground. I want to find velocity here. What is velocity here? This point will have vertical velocity, this object, and horizontal velocity. And I want to find velocity here, right? And I want to find in how much time it will fall down to the ground. And I want to know in how much distance it will go in the forward direction. If you want to use the equation that I have derived, okay, that's okay. That will be very easy to substitute the equations now. But if you don't want to use equations, those straight formulas, you can derive them anyway here. Okay, बताइए मुझे आप, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, vx, इस ऑब्जेक्ट का जब ये हिट करेगा, वही जो यहां पर है 15 meters per second. It should be, because horizontal velocity is not going to change, because this ax जो है वो जीरो है, horizontal direction में कोई भी acceleration नहीं है. So why should the horizontal velocity change? और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं, आप कहेंगे vx is equal to ux plus axt, तो ये जीरो हो गया, तो आपको vx equal to ux हो गया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो अगर आप मैं पूछूंगा व्हाट इज vy, दैट इज uy plus ayt. व्हाट इज दैट uy? क्योंकि अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है तो इसका इनिशियल y वेलोसिटी जो है वो जीरो है, because it has been totally put in the horizontal direction. तो इसका कंपोनेंट इस ओर ये 90 बनाता है, ये cos 90, तो ये जीरो हो गया. अच्छा, तो it is uy is equal to 0 minus gt, that is minus gt. अब ये vx भी है, vy भी है, अब वेलोसिटी निकालिए आप, that is root of what, 15 square plus g square t square. But you are held by time here. You don't know how much time it takes to fall fall for the object to be from here to here. तो टाइम के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, t is equal to root of 2h by g. अगर नहीं तो फिर से डिराइव कर सकते हैं आप, t is equal to root of, that is 2h is 490 by g is 10. That is, this cancels off. It is t is equal to root of, g को 10 लीजिए for calculation purpose, 49 into 2, that is 7 root 2. तो ये टाइम हुआ, वो टाइम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या यहां भी कर सकते हैं, g को 10 लिखो and you will get the answer. Fifth point, this is an example which I have framed for this motion. कि horizontal में जब आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो उस सूरत में क्या क्या इक्वेशन यूज हो सकते हैं, तो कैसे आप चीजों को इजीली और एक्यूरेटली कर सकते हो. ओके, फिफ्थ पॉइंट.
Fifth point. Point number 5. An object launched from certain height again. An object launched from certain height again, yes. But not horizontally, but at an angle with the horizon. That is a little different. That is a little different. And I will frame some problems on that. This is I mean a tower. तो यहाँ आप एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च ऑफ कर रहे हो विद सम वेलोसिटी ओके u and with what angle with the horizontal, suppose theta. It falls like this. So what are the questions that can be asked? It is launched from some known height. ये height known है, तो आपने इसको लॉन्च किया at some angle theta. तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वही कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में, या यहां पर क्या वेलोसिटी है, या यहां पर क्या वेलोसिटी है, वो भी, या आपसे पूछा जाएगा हाउ मच फॉरवर्ड इट हैज गॉन इन द एक्स डायरेक्शन. इसका रेंज क्या होगा, कितना इसका रेंज है यहां से यहां तक, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द डिस्टेंस वेयर इट हैज स्ट्रक द ग्राउंड. मतलब ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है कवर हुआ, यह भी पूछा जा सकता है. टाइम पूछा जा सकता है, कितना टाइम लगा, कितना आगे गिरा, और कहीं भी वेलोसिटी निकालो. अब क्या करेंगे हम, दिया क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसंट्रेट ऑन सर्टेन ऑन दोज थिंग्स व्हिच आर गिवन. तो गिवन सिर्फ u है और h है, तो यहां पर क्या वेलोसिटी है, ये u cos थीटा दैट इज ux, और यहां वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा दैट इज uy. तो ये दिया है, ये दिया है, लेकिन ये खत्म हो गया, इसके मैंने दो पीसेस कर दिए. अच्छा, now please take, okay, again I will write quickly ax is 0 and ay is minus g. And I have already promised you, I made a promise initially that I will use only that set of equation, v and s, and I am standing by my promise. I stick to my promise. I have used only those equations. तो यहां पर भी क्या इक्वेशन यूज करूंगा, जरा मुझे बताइए. इस x के लिए क्या इक्वेशन यूज करूंगा मैं, बताइए. ये वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी जो इसको फॉरवर्ड लेता है, दैट इज ux इनटू, ओके, पूरा टाइम t. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब ये टाइम t कहां से मिलेगा. हाँ, आप कहेंगे वो कहां गया, 1/2 ax t स्क्वायर. ax is 0, so horizontal distance is only velocity into time, because in horizontal direction there is no acceleration. So every time I don't need to write 1/2 ax t square, then ax is 0 and I rub that off. So with time you have to gain experience कि what we are doing. अच्छा, अब बताइए इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि ये जो h है it is below the origin, so negative minus h is equal to, okay, initial velocity. पहले, अच्छा ओके, पहले मैं लिखूंगा वो इक्वेशन जो आप रेडीली याद आपको होगा, u/t plus 1/2 a/t square. This is the equation in the y direction. मतलब this will be involved, this will be involved, and nothing. This will be involved, this will be involved, and this will be involved. Acceleration. This one, and this one. Only these three things will be involved. Because two motions are independent. ये इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. ये अपना रिलेशन है, ये अपना मोशन है, ये दूसरा मोशन है. इन दो में कोई रिलेशन नहीं है, इन दो में कोई they don't interfere with each other. So sy is what? Minus h. Going through the conventions, get downwards taken as negative. What is uy? That is uy, u sin theta, of course. u/t plus 1/2 minus g t square. That is minus h is equal to u/t minus 1/2 gt square. This is the equation, and this is the equation. Only these two equations will be used to find time, to find x. And what about velocity here? यहाँ पर velocity ये होगा, इस velocity का फॉरवर्ड कंपोनेंट vx है, जो ux के बराबर ही होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसमें तो कोई velocity का चेंज नहीं होगा. और ये velocity that will be uy minus gt. uy is initial vertical velocity minus gt.
जिसको आप लिखते हैं यू वाई प्लस ए वाई टी, ए वाई इज माइनस जी टी। और यहां पर भी ये वाला वी एक्स हो गया, दैट इज वी यू यू एक्स, और ये वाला हो गया वर्टिकल वाला हो गया, ये एक्चुअल वेलोसिटी वी है, इसको टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल है, वी वाई दैट इज यू वाई माइनस जी टी। और ये टी जो है वो यहां से निकलेगा, इज दैट इज राइट, कैपिटल टी है राइट, बिकॉज कैपिटल इज टी इज टोटल टाइम। तो ये टी यहां से निकलेगा इस इक्वेशन से, उसके दो वैल्यूज होंगे एंड यू हैव टू पिक अप द राइट वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू, गुड नाइस वन। तो उसको यहां सब्स्टिट्यूट करके आप वी वाई भी निकाल सकते हो, आप वी एक्स भी निकाल सकते हो, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और चाहो तो ये एंगल भी निकाला जा सकता है अल्फा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई, ये वाला कंपोनेंट बाय ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट, दैट इज वी वाई बाय वी एक्स। दिस इज द टोटल प्रोसीजर, how you do the things। लॉन्च किया ऐसे, दो पीसेस कर दिए, ऐसे आ गया ये, तो ये वाला मोशन अलग और ये वाला मोशन अलग। इस मोशन में ये है नहीं एक्सेलरेशन, इस मोशन में एक्सेलरेशन है, बस दो मोशंस को अलग अलग कर दो। एंड इन गुड बुक्स उसको एक्स अलग और वाई अलग करके दिखाते हैं, एक्स का मोशन अलग दिखाते हैं, वाई का मोशन अलग दिखाते हैं। अच्छा, नाउ let me go first fourth example, I think. First fourth example. Sixth point. Let me do one more thing to have more practice with the projectile motion. I'm launching I don't want to make it here. ऐसे यहाँ पर बनाइए आप. It is x, it is y. Launching a projectile here with velocity 28 meters per second. At an angle of 30 degrees, it goes and falls over here. तो बताइए ये h, बताइए ये h max और ये r कितना है? It is a straightforward question. Here, what are the questions that I can ask? बताइए r क्या है? बताइए h किसके बराबर होगा? बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? और क्या? और क्या निकालना है? हाँ, बताइए what is the velocity it hits the ground with what velocity? वैसे याद रखो, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज इन फ्री स्पेस और इवन इन दिस एयर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट द फ्री स्पेस, जिस वेलोसिटी से आप इसको लॉन्च यहां करते हो उसी वेलोसिटी से ये वापस हिट करेगा ग्राउंड को, और जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, वो चेंज तो होगा नहीं, दैट इज व्हाटएवर, वो मैं निकालूंगा यहां, और वर्टिकल वेलोसिटी जो यहां होगा वही यहां पर भी वर्टिकल वेलोसिटी। भाई जब रिजल्टेंट 28 हुआ तो ये कंपोनेंट्स भी वही ठीक ठीक होंगे, मगर यहां वर्टिकल वेलोसिटी में सिर्फ एक फर्क हुआ, यहां वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड्स है और यहां वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो फिर से ए एक्स इज 0, ए वाई इज ओके माइनस जी, इसको माइनस 10 कर दो फिलहाल। तो पहले आर जो है तो उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सब्स्टिट्यूट करना, 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 2 into 30 it is 30 here by g that is 10, so r is equal to 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 60 by 10 equal 28 स्क्वायर साइन 60 रूट 3 by 2 whole divided by 10 equal रूट 3 into 28 स्क्वायर by 20। ये आप खुद कीजिए, इसको निकाल कर दीजिए, 28 का स्क्वायर वो कर दो और इसको, ये हो गया समझो। h, what is the vertical height achieved by the particle in this case? Let me do that. ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, क्वाइट इजी, सबस्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स को कहते हैं, these are substitution problems। h max is equal to u square sin square theta by 2g, if you remember the formula। u square is 28 square sin square sin 30 whole square by 2g 2 into 10, it is 28 square sin 31 by 2 square करके 1 by 4 by 2 into 10, you got 28 square 4 to 8 80
करते रहना इस चीज को अपने हिसाब से स्क्वायर करके इसको अच्छी तरह से कर लेना। एंड हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम का फॉर्मूला अगर याद आपको होगा, दैट इज 2 times u sin theta by g. Substitute the values, 2 into 28 into sin 30, that is 1 by 2, that is by 10. This cancels off, it's 2.8 seconds. Problem, 7th application. Suppose, you see, again, I will make the simple case again. Here I have a projectile and with velocity u, and it goes on to 3 kilometer distance at an angle of 30 degrees. You are launching a projectile with any velocity u, and it goes at an angle of 30, it goes to 30 kilometers, 3 kilometers. Okay, my question is, can the projectile hit? A wall at 5 kilometers away, at 5 kilometers away? This is my question. Pause for a moment and see how to solve this question. The projectile has a range of 3 kilometers at an angle of 30 when you launch it with velocity u. Can it hit a target at 5 kilometers away? Or can it hit a wall which is 5 kilometers away? Let us see. Okay. 3 kilometer range is equal to u square sine 2 theta by g. That is what you know. Range is equal to, okay, here is 3 kilometer. 3 kilometer is equal to u square sine square theta, that is sine 60, by g, that is 10. What is u square now? What is u square? Okay, इसको 3000 भी बना सकते हैं. चलो मैं 3000 बनाऊंगा इसको for consistency, because it is meters per second. I also want to make it in meters. So u square is what? U square is 3000 10 multiplied by sine 60. Oh, okay, that is root 3 by 2. It will go up. That is u square is equal to 6000 by root 3. That is, okay, keep the u square like this, because I need this u square in another case. Will it hit 5 kilometers away? So how much away it can go, मतलब how much maximum distance it can go in the forward direction, that I want to find. तो अगर वो maximum distance जो है आगे जाएगा, अगर वो 5 किलोमीटर से ज्यादा है, अगर वो 5 किलोमीटर से ज्यादा है, समझो हिट करेगा. अगर वो मैक्सिमम रेंज जो है वो 5 किलोमीटर से कम है तो नहीं हिट करेगा. सो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होता है? एट व्हाट एंगल आई हैव द मैक्सिमम रेंज? इट वाज 6000, u square was 6000 by root 3. Yes, it was this. Okay, let me keep this in my mind. Maximum range, that's equal to u square by g, if you remember it. याद है आपको u square by sine 2 theta when sine 2 theta was 1 and the maximum range was at 45, and I got this maximum range in that case. So what is u square? That is 6000 by root 3 into 10. Okay, so it is 3 root 3. It is 6. 6 means 2 into 3 into, okay, it was 6000 or it was something more. Yeah, what it was, I will again find it out here. I have rubbed it off. So it is 3 kilometer is equal to u square sine 2 theta by g, that is 3000 into this 10 into this root 3 by 2. It goes 6 100. It is 4 zeros. It is 4 zeros here, so it is 4 zeros. It is 6
into 10 raised to the power 4, this one by root 3 into 10. It is 2 root 3 over root 3 hoga, because they are this into 10 raised to the power 3. How much is this? It is 2 into root 3. 2 into root 3. What's 2 into root 3? This 2 into 1.72 in kilometers. That is 2, 3, 4, 2, 7. Maximum range is 3.44 kilometers. At 30 degrees it was 3 kilometers. Now at an angle of 45 it is 3.44 kilometers, right? So therefore it will not hit a wall which is 5 kilometers away. So you can copy it down. So again I will repeat the problem. If you launch an object at an angle of 30 degrees with velocity u, it goes to the distance of 3 kilometers, right? We have to find will the projectile hit a wall which is 5 kilometers away. The answer is no, because I found the maximum range. Maximum range is u square by g, and that was less than 5 kilometers. So there is no point that it can hit a wall which is 5 kilometers away. That's all. That is all. Point number 8. Again, I will discuss one more example with you. The example is there is an aircraft going in the space, and I have a soldier on the ground. It is an enemy aircraft, and a soldier on the ground wants to shoot it down. The aircraft is moving very fast. It's a fighter aircraft. It moves very fast, and you want to shoot it down. Maybe you shoot it down and it misses the point. So you have to shoot it in such a way that your bombshell or your bullet will get down the plane. So it is problem on that. So what I do is, it is a plane. I will make this plane, though I am not good at making things planes. And here on the ground, it's a plane. It has a velocity 270 kilometers per hour. And here is a soldier here. It has a gun like this. Wants to shoot the gun, bullet or fire or a bombshell or a missile. It wants to get down the plane. And when it goes overhead, the soldier, it is at how much height? 1.5 kilometers. Let me suppose. What should be the angle of the gun with respect to the vertical? So that this plane is just, when it shoots the bullet, when it shoots the rocket, at that time the plane is above his head. He shoots like this, and the plane is just above his head, and that also moves in the forward direction. So I have to find this angle. At what angle the gun should be kept so that it shoots down the plane. So what should I do? How to do it? Okay, the bullet goes like this, or the missile goes like this, and the aircraft goes like this, and here is the aircraft which is hit. How the aircraft can be hit? If the distance covered by the aircraft from here to here, that is x, is the same as the missile covers the horizontal distance x. This x and this x should be the same. It will be hit. If this x and this x is not the same, then it will not be hit. Right? So what should be angle theta? Yes, velocity is 600 meters per second. That is the velocity of the gun fire. That is the velocity of the rocket. So it is a simple concept that the bullet and the aircraft, they should move the same horizontal distance in the same time, and then it will be hit. So what should I write? What equation that I am going to write? First of all, I want to make it meters per second. So 725 by 18 is equal to 200 meters per second is its velocity. It is a 600. Okay. Now what is this x? That is 200 meter per second. That is a constant velocity into time. Okay. Into time.
And how much distance it has covered in the horizontal direction, this bullet or this missile or rocket, that is x again, that is 600. What is the vertical component here? Theta यहाँ defined है, ऐसा मत समझो ये हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, जिसके साथ थीटा डिफाइंड होता है वो कॉस कंपोनेंट बन जाता है, 600 कॉस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट 600 साइन थीटा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो x, ये x जो है that is 600 sin theta into same time, because in the horizontal direction there is no acceleration, so x will be simply 600 cos sin into t, but generally you write it 600 cos, but you should be careful, theta is this, not this. अगर थीटा ये है तब, so sometimes you make this mistake, ये थीटा जिसके साथ डिफाइन होता है उस डायरेक्शन में cos कब होता है। इन दो को कम इक्वेट करो, so जब मैं इक्वेट इन दो को करूंगा तो मुझे मिलेगा 600 sin theta into t is equal to what? Is equal to 200t. T cancelled, sin theta is equal to this by this, so go 200 by 6 and 1 by 3. Theta is equal to sin inverse 1 by 3. Answer. इसको इस एंगल पर यह रखना चाहिए वर्टिकल के साथ ताकि वो शूट डाउन हो जाए। अगर वो एंगल नहीं है, थोड़ा सा से ज्यादा एंगल है, नहीं होगा शूट डाउन। ओके, नाउ if I make one more object or a problem out of this, at what height should the aircraft fly for this angle so that it is never hit? तो उसका मतलब जो इसका वर्टिकल रेंज होगा किसका, इस बुलेट का या इस मिसाइल का जो वर्टिकल रेंज होगा, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट जो होगा वो 1.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए। नो 1.5 किलोमीटर से कम की बात नहीं है, इसका मैं वर्टिकल हाइट निकालूंगा, एच मैक्स निकालना चाहूंगा, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये उस एच मैक्स से ऊपर फ्लाई करना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम हाइट उसको वो हिट न करे। तो एच मैक्स निकालना पड़ेगा, वो भी बहुत सिंपल है, एच मैक्स इज इक्वल टू दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मगर यहां जो है थीटा है वो ये था, ये नहीं। तो आपको डोंट बी कंफ्यूज दैट यू शुड सबस्टिट्यूट दिस थीटा हियर, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मगर अगर इस थीटा में काम किया जाए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए प्लीज लिसन टू मी, जो हमने डेरिवेशन किया था उसको हमने सिर्फ थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ डिफाइन किया, तो हमें कुछ इक्वेशंस मिले, लेकिन अब जो थीटा मैं इसके साथ डिफाइन कर रहा हूं, अगर वर्टिकल के साथ थीटा डिफाइंड है तो जहां जहां साइन आया, कम से कम यहां पर, यहां जो साइन स्क्वायर थीटा आया ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब आप यू स्क्वायर को सबस्टिट्यूट करो, ये चीज सबस्टिट्यूट करो, साइन स्क्वायर थीटा है यहां कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल एंगल बाय जी। तो इट इज यू स्क्वायर बाय जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ये। तो आप क्या करोगे, यू स्क्वायर को सबस्टिट्यूट करो वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए, यू स्क्वायर को आपने सबस्टिट्यूट किया क्या है 600 का होल स्क्वायर बाय जी दैट्स 10, 1 माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स 1/3, साइन को यहां पर ले आओ तो साइन थीटा इज 1/3, साइन स्क्वायर इज 1/9, 1/9 यहां लिखना पड़ेगा। ये है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो आप क्विकली कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, 8/9। तो ये करके आप देखो ये हाइट क्या है। तो फिर ये जो एयरक्राफ्ट है उसको इस हाइट से भी थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा ताकि इट इज नॉट हिट, ताकि इट इज नॉट हिट। 9th पॉइंट, चलो और एक चीज बनाता हूं, ux इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड uy इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटीज है प्रोजेक्टाइल मोशन में या अंडर ग्रेविटी है, ऐसे भी देख सकता हूं, ये x है, ये y है, ये वाला कंपोनेंट है 8, ये वाला कंपोनेंट है 6। One of the questions that can be asked, we are given only 2 components of initial velocities and nothing else, absolutely nothing. But you know the acceleration due to gravity is 10, that is
अगर गिवन है तो है, नहीं है तो वो तो इम्प्लाइड है कि दैट इज, वो आपको ले सकते हैं कि जी इज 10। अच्छा, व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पहला क्वेश्चन है इस पर, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल पर ये ऑब्जेक्ट है लॉन्च, किस पर हुआ है, किस एंगल पर लॉन्च हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन किस एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ये तो कंपोनेंट्स है इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन सी, और चलो रेंज क्या है? डी, और क्या? वर्टिकल हाइट और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। 5 क्वेश्चंस हमने बनाए, इसके 5 क्वेश्चंस के बनाए। सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के वेलोसिटी के दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी समझो, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, दोनों कंपोनेंट्स दिए हैं लेकिन एंगल नहीं दिया है। तो क्या किया जाए? देखिए अच्छी तरह से देखिए। पहले मैं ये निकालूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चलो देखता हूं, दिल तरतीब ही निकालूंगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल तो बताइए, अगर ये थीटा है तो tan था किसके बराबर है? सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट 8, बेस कंपोनेंट 6, दैट्स 8 by 6, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये खत्म हो गया, एंगल निकला हमें। दूसरा चलो वेलोसिटी, पूरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, u एक्स स्क्वायर प्लस u वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दैट इज 100, दैट इज 10 रूट के हो गया। दूसरा भी सी, व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके बराबर? अगर आपको याद होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। लेकिन यहां पर क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये थीटा निकला है तो मुझे sin 2 थीटा निकालने की कोशिश कर दिया। sin 2 थीटा एज यू ऑलरेडी नो दैट इज ट्वाइस sin थीटा cos थीटा। तो उसमें आपको tan थीटा तो है और फिर cos और sin भी निकालना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये बनाना चाहिए ट्रायंगल, और sin और cos क्विकली आप निकाल सकते हैं। जैसे ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर 4 है, ये 3 है, तो बिकॉज tan इज परपेंडिकुलर बेस, ये 4 है, ये 3 है, ये हो गया रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो हो गया 5। तो अब cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, sin थीटा परपेंडिकुलर 4 बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल से फिर तीनों निकलते हैं। अगर आपका एक एंगल दिया है tan थीटा का, तीनों निकल सकते हैं, सारे एंगल निकल सकते हैं। या अगर आपको sin थीटा भी दिया हो तो कर सकते हो, cos थीटा दिया हो तो कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं, आई डू इट डिफरेंट वे। लेकिन आपके पास तरीका है, थीटा है, tan थीटा निकाल सकते हो, sin थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा भी निकाल सकते हो, और ये कुछ भी नहीं है, sin 2 थीटा इज ट्वाइस sin थीटा cos थीटा। cos थीटा भी आपको मिला होगा, sin थीटा भी मिला होगा, सब कुछ करके खत्म कर दो। अच्छा, लेकिन आई वांट टू डू इट अदर वे राउंड। हो सकता है आपको वो इजी लगेगा, या फिर अगर आप इसी मेथड से चलोगे तो ठीक है। सो रेंज इज इक्वल, हैव अ लुक, u स्क्वायर ट्वाइस sin थीटा cos थीटा by g, it is 2, it is u sin theta and u cos theta by g। अगर आपको याद होगा डायरेक्टली में मैंने कहा था ट्वाइस ये ux हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हुआ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी बाय g, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, ये मैंने पहले लिखा, ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये तो डायरेक्टली दिए हुए हैं, सो व्हाई यू बॉदर? इट इज 2 times, इट इज 6 into 8/10, इट इज व्हाटएवर
96 by 10, it's 9.6 possible. अच्छा, वर्टिकल हाइट कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद होगा वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था. वर्टिकल हाइट दैट इज vy square uy square by 2g. It is actually u square sin square theta. उसको मैंने ऐसे भी बनाया था और साथ में ये भी कहा था कि वर्टिकल हाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ये मैंने फॉर्मूला मेंशन भी किया था इनिशियली जब मैंने लास्ट लेक्चर दिया. तो असल में आपको पता है कि ये इसका फॉर्मूला ये है कि u square sin square theta by 2g. लेकिन u sin theta is uy, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो ax square by 2g that is 64, 2g that is 32 by 10, 3.2. That's it. अगर टाइम भी निकालना है तो that is 2 vy by g, uy by g. वो भी वर्टिकल वेलोसिटी पर ही डिपेंड करेगा टाइम. तो इट इज 2 into that is 8 and that is g10, that is 1.6. Question easily done. ठीक? Yes sir. 10th point. 51 minutes. 10th point. मेरे पास एक इक्वेशन है y is equal to ax minus bx square. What kind of equation is this? If you look it very closely and sharply, तो ये कौन सा इक्वेशन है? ये किस किस्म का इक्वेशन है? पैराबोलिक. ये तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है. कैन बी कंपेयर्ड विद दिस y is equal to x tan theta minus 1 by 2 g x square by u square cos square theta. It is the general equation for projectile motion. अभी आप भूल गए होंगे, ये मैंने निकाला हुआ है. ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है. तो ये भी इसी के साथ मैच होता है. देखो a is here tan theta and b is everything without this x square. x square के बगैर जो भी है वो x, वो b है. And now I am given this equation. तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है, what is range? तो you must have experience with dealing with the equations. अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप ढूंढते रहोगे वो थीटा, वो इनिशियल वेलोसिटी, वो सब कुछ जो मिलेगा नहीं कहीं. आपके पास सिर्फ इक्वेशन है. तो यू मस्ट हैव बेटर एक्सपीरियंस विद डीलिंग विद द इक्वेशंस. तो पहला जो है व्हाट इज रेंज, यहां से. दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैं खुद बनाऊंगा, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. किस एंगल पर ये आप थ्रो कर रहे हो? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस वन, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. थर्ड, और क्या पूछा जा सकता है इसका? वर्टिकल हाइट. यस, वर्टिकल हाइट भी एच मैक्स. चलो, और ये डी जो है, टाइम भी निकालूंगा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल. और क्या निकाला जा सकता है? और भी इसमें कुछ है जिसको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में. व्हाट इज रेंज, रेंज निकालना पड़ेगा. एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल वो भी निकालेंगे. एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, लेकिन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा. टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल वो भी. ये तीन चीजें निकालने पड़ेंगी. चलिए कोशिश कर लेते हैं कैसे निकालें. लेट मी ट्राई इट आउट. लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में. खुद भी थोड़ा सा सोच लो कैसे हो सकता है. देखो, मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि वो एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस x, तो उसने रेंज के बारे में मुझे पूछा था. तो अगर रेंज की बात है, y को 0 कर दो, बिकॉज रेंज इज समथिंग लाइक दिस. रेंज इज समथिंग लाइक दिस. ये रेंज है. ये रेंज के लिए y एंड पर 0 होना चाहिए. अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 रखूंगा तो x तो बन गया r,
दैट्स ऑल। तो जब मैं इसको 0 रखूंगा, इट इज ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, दैट इज 0 इज इक्वल टू x कॉमन निकालकर a माइनस बी एक्स। ये तो 0 है नहीं x, तो अगर 0 होगा तो ये क्वांटिटी होगा, तो a minus bx is equal to 0 because this x is not 0 because we know range has some value. So what is x? That is a by b. पहले का आंसर मुझे रेंज मिला just by putting y is equal to 0. वो फिजिक्स है कि कॉन्सेप्ट है कि when it hits the ground y is 0, but by that because substituting y is equal to 0, x has to be r. Number 1. Number 2, ये एक का आंसर तो हो गया। दूसरा ये है कि व्हाट इज एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल? ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y goes to y, x goes to this x, this a goes to tan theta. When you compare the two equations, a is equal to tan theta and theta is equal to tan inverse a answer. That is the answer. Very easy, but just by comparison. तो अब क्या निकालें? अब इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहूंगा। जो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, लेट मी फाइंड सो दैट एटलीस्ट आई कैन फाइंड अदर थिंग्स लेटर। सो एक्स स्क्वायर जो है वो यहां पर है, तो जब मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, बी को क्या मिलेगा? व्हाट विल बी गेट इन कंपैरिजन? सो बी इज इक्वल टू, ये भी आंसर हो गया है, b is equal to g divided by twice u square cos square theta. लेकिन यहां cos square मुझे पता नहीं है, ये cos square मैं यहां से लाऊंगा, ठीक? that will be better. तो फिर से वही tan theta, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, वो इजी हो जाता है। ये थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, tan theta is a divided by 1, tan theta is perpendicular base, perpendicular is a, base is 1, तो वो यहां से ये, तो फिर ये खुद ही a स्क्वायर प्लस 1, फिर यहां आपको कोई भी थीटा मिल जाएगा, cos समझो, sin, cosec, एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्रायंगल। सो b इज इक्वल टू g डिवाइड बाय ट्वाइस u स्क्वायर, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो गो 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज इट इज स्क्वायर, cos थीटा इज 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू g इंटू a square plus 1 divided by 2u square. Okay, now मुझे u चाहिए, u square है because in most of the equation I need u square. चलो u निकालते हैं, फिलहाल तो u निकालते हैं। Let me find u. Let me find u. U square is equal to, ये यहां आएगा, b को नीचे गिराओ, so g times a square plus 1 whole divided by 2b. u अगर चाहिए तो उसका वो u है रूट ऑफ g टाइम्स a square plus 1 divided by 2b. ओके, ना और भी चीजें हैं जो मुझे फाइंड कर, वैसे ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये उन क्वेश्चंस में नहीं था, लगे हाथ ये भी मिला हमें, अगर पूछा जाएगा तो ये भी हमने निकाला। In terms of known quantities were a and b and g. These are the known quantities, and you found initial velocity in terms of known quantities. So what about this? क्या निकाले? रेंज तो निकाला, vertical height h max. चलिए, what is that? That is u square sin square theta by 2g formula. What is u square? That is ये वाला, that is g into a square plus 1 divided by 2b. What is sin square? उस ट्रायंगल से भी जो मैंने बनाया था, यहाँ पर ये थीटा है, ये a है, ये 1 है, तो ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ये भी बनाया था, रब किया मैंने। सो व्हाट इज साइन थीटा? a बाय a स्क्वायर प्लस 1। क्यों? बिकॉज साइन थीटा इज a बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर से हो जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर करके ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया, दैट इज g टाइम्स a स्क्वायर डिवाइड बाई 2b हो गया। टाइम भी निकाल सकते हो, दैट इज ट्वाइस u साइन थीटा
by G, that is 2 times, what is U? Root of, yes, G times A square plus 1 by 2B, वो तो U हो गया, ये वाला U, sin theta, whatever sin theta, perpendicular by hypotenuse, that is A square plus 1 by G, उस G को यहाँ ये रखो, हो गया आपका ये T, time of flight. So, a simple equation given to you, and you just recognize that equation, आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स जो है इसको करने से होता है. यू डू इट एंड डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद इट, तो आखिर में आपको ये सब आएगा. आप ये you just listen to my what I speak and you feel that you will understand everything. That is not possible. Only when I write these things on the board, you just copy them or you just उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और दिस इज मिनिमम विच यू हैव टू लर्न. तो बाकी प्रॉब्लम्स, तो देयर इज नो एंड टू द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट आर गिवन इन द बुक्स. तो वंस यू डू दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है आगे जाकर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. And possibly you may be able to do other things on your own. Thank you. And lastly, I want to mention, you just download my app, that is Tantray Physics Classes from Google Store, and stick to the lectures and follow the lecture series. And you will get everything from this platform. You don't need to go from center to center for physics here and there, because as you know, it is very wastage of time going from one center to another center and wasting all the time all through your because you have limited time. So what I'll be teaching gradually, systematically, the whole course of NEET and IIT. IIT lectures will be different. There I will write these are the lectures for IIT students, and NEET students need not watch those lectures because they will feel not quite interested in them. But that will be separate for IITs. Thank you for watching the lecture series.